جرنلسٹ انڈیپینڈنٹ فورم کے زیر اہتمام اے پی ایس پشاور سانحہ کے شہیدوں کے لیے خصوصی طور پہ بچوں کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس بروکلن نیو یارک میں منعقد ہوا، جس میں کمیونٹی کی ممتاز شخصیات، خواتین کی مختلف تنظیموں کے علاوہ میڈیا نے شرکت کی۔ شرکاء نے اے پی ایس پشاور کے سکول میں دہشت گردی کے واقعے اور بچوں کی قتل و غارت اور اساتذہ کی شہادتوں پر غم و غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے شہداء کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی قربانیوں اور ان کی جو افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے اندر ٹیررزم کا جو ایلیمنٹ ہے، جس میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور پاکستان میں استحکام اور افواج کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا اور شہداء کے لیے دعائیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ۔ تقریر کی نظامت فاروق مرزا پریزیڈنٹ فورتھ پلر نے کی اور انہوں نے تقریب کے اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے یہ کہا۔ ایک گیسٹ آف آنر ہے، تو آج ہم نے ایک تو مبارکباد بھی ایک کلیکٹیو ہم نے دینی ہے۔ جناب مشتاق احمد کمبوہ صاحب بین المذاہب آرگنائزیشن کے دنیا میں بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان کا ابھی ایز اے کمیونٹی جو ایکٹیوسٹ اور کمیونٹی ایمبیسیڈر کا ان کا حکومت پاکستان نے ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ آپ کی بہت خدمات ہیں کمیونٹی کو جوڑنے میں، اور اس کے علاوہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی ہے۔ فیصل آباد میں کافی ساری آرگنائزیشنز کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر جو ہیں وہ مشتاق احمد کمبوہ صاحب ہیں۔ مشتاق کمبوہ صاحب کے لیے آپ شکریہ۔ اس کے بعد میزبان ہمارے بھائی جناب مرزا فاروق صاحب اور راج شہباز صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما، خواجہ فاروق صاحب بھی، یہ وہ ماشاءاللہ میڈیا پرسنز ہیں جو امریکہ جیسے ملک کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں، سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ بہادری سے کام کرتے ہیں۔ جو ایک کمیونٹی کے حق میں بات جاتی ہو، اگر اس کو کوئی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہو، تو ماشاءاللہ یہ گروپ جو ہے ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں 25 سال پہلے کی کہ میں مرزا صاحب جلوس کی نمائندگی کر رہا تھا میں، تو اس کے اندر ایک کیلکسٹ آ گیا خود کی شامنے والا، خیر اس کو پکڑ تو لیا، ایک تو پکڑ لیا ہم نے، لیکن دوسرا جو تھا نا وہ اپنے جیکٹ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ آنکھیں وہ منظر آج تک نہیں بھول پائی۔ میں نے اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بزرگوں کی لاشیں ہوا میں بکھرتی ہوئی دیکھی۔ تو اسی طرح دوسرا جو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلہ سے ہے کہ اے پی ایس اسکول کے اندر جو کچھ ہوا دہشت گردی کا، اس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ملک کے اندر لا قانونیت کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا، اس کے اندر کون ذمہ دار ہے کون نہیں ذمہ دار، یہ آج تک اس بات کا فیصلہ موجودہ گورنمنٹ یا سے سابقہ جو گورنمنٹیں جا چکی ہیں وہ نہیں کر۔ تو سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا فیوچر، وہ اے پی ایس کے بچے جو 16 دسمبر کو شہید ہوئے، وہ پاکستان کا بیسٹ فیوچر تھا۔ وہ بے حس قوم یا وہ لوگ جن کے نزدیک قتل کرنا جرم نہیں ہے، ان کے بیڑ چڑھ گئے۔ تو پاکستان بے شمار اوقات کے اندر بے شمار ایسے حادثات سے دو چار ہوتا آ رہا ہوا ہے۔ آج بھی میں اے پی ایس کے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں، ان بلکتی ہوئی ماؤں کی طرف دیکھتا ہوں۔ آج کا دن جو ہے خصوصاً آج جیسے مرزا صاحب، انیلا رشید بیٹھے ہیں، باقی ساری ٹیم، راج شہباز صاحب بیٹھے ہیں، فاروق صاحب، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن پولیٹیکل سائنس کے اندر کیا ہوا، کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں،
کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا میں تو پی ٹی آئی کا ہوں، وہ کہتا ہے میں مسلم لیگ کا ہوں، وہ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے میں فلاں پارٹی، وہ کہتا ہے میں فلاں پارٹی. کہ تم سارے پارٹیوں میں تو تقسیم ہو گئے، تو پاکستانی کدھر ہے جی؟ مسلمان کدھر ہے، پاکستانی کدھر ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ 65 کے اندر جو وار ہوئی تھی اس کے کسی بم کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے، یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے؟ کسی گولی کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ گولی شیعہ کو لگے گی، یہ گولی سنی کو نہیں، اس کے اوپر لکھا تھا یہ صرف پاکستانی کو لگے گی. اور رب ذوالجلال کے آگے کہ اے اللہ آج کا دن، کیونکہ جو اے پی ایس کے شہداء ہیں، اے اللہ ان کو تو معاف کر دینا، وہ بے گناہ تھے، معصوم تھے. اے اللہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے معاملات جو ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اللہ پاک اس سے جتنی جانیں جا چکی ہیں سب کو اے اللہ پاک کو جنت فردوس میں جگہ دینا. اے اللہ وہ مائیں جو تڑپ تڑپ کر مر گئی ہیں، اے اللہ پاک ان کو صبر دینا. اے اللہ ایسے جو میرے پاکستان کے اندر معاملات ہیں جو انسانیت کو دکھی کر دیتے ہیں، اے اللہ پاک میرے پاکستان کو ایسے معاملات سے محفوظ فرما. ہم سب کو اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر مسلمان کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے اے اللہ پاک خیر الناس والا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت. مرزا صاحب سے دعا کرو اللہ سے دے دے. انشاءاللہ جی مرزا صاحب میرے بھائی ماشاءاللہ یہ بیمار ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ حق کا تحفظ میرا خدا کرتا ہے، تو مرزا صاحب ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ان کو شفا بھی دے گا. ان کی ابھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور خداوند تعالیٰ ہمارے تمام تر دوستوں کے تمام تر گناہ کبیرہ صغیرہ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگیوں کے اندر ہو چکی ہیں، خداوند تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ. یہ پروگرام جو ہے یہ جو ایک میڈیا اور کمیونٹی کا جو ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے ہمارے سید شہباز صاحب، یہ پاک وطن ٹی وی اور ان کا ایک اخبار ہے کمیونٹی کا ممتاز، یہ ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک روزنامہ مشرق اور مرر، ڈیلی مرر، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خواجہ فاروق صاحب. اور ہمارے مہمان ہیں کامران صاحب، ان کا شاید آپ کو اتنا زیادہ تعارف نہ ہو. ڈیلی ایکسپریس یہ اس کے بھی بیورو چیف، اور یہ 4 لوگوں کی یہ ہماری کاوش تھی. اور میں تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ باری باری کھڑے ہو کے اپنا تعارف خود کرائیں مختصر، اور شہداء کے لیے جو بھی وہ کہنا چاہیں اور الفاظ میں کہیں تاکہ سب کی. مقررین نے جو کہا، آئیے ناظرین ہم آپ کو سناتے ہیں. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں میں پریکٹس کرتا رہا ہوں. بیسیکلی میں خالد شاہ کراچی گلزار ہوں، وہاں کا نمبردار بھی. تو اب میں وکالت کو تقریباً چھوڑ چکا ہوں. اپنے بیٹے کے ساتھ میں امریکہ ملتا ہوں. خواجہ فاروق صاحب اکثر ملتے ہیں، آپ کا ذکر خیر اکثر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات آپ کے گھر سے ذکر کرتے ہیں. آج کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس پہ اگر بات کریں تو پاکستان ہسٹری میں اتنا بڑا ظلم، نابالغ معصوم بچوں کو جس بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر کسی کا قصور تھا تو اس پہ وہ حملہ کرتے. اگر آرمی کے خلاف تھے تو آرمی کے خلاف کرتے، اگر پولیس انتظامیہ کے خلاف تھا تو انتظامیہ کے خلاف کرتے، وہ جو دہشت کرتے. لیکن ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، بے گناہ بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم ہے. ماں باپ چھوڑ کر ہفتے گئے اور ان کو جب خبر ملی کہ وہاں پر حملہ ہو گیا ہے اور ان کے بچے شہید ہو گئے، تو یقین چاہیے کہ ان ماں اور باپ کا کیا
तो सिलेक्शन हो गया होगा, बच्चों को शहीद कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक खबर थी, बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों को जवार रहमत में जगह दे और उनके वालिदैन को जवार रहमत में जगह दे। दूसरा जो सामने मशरक़ी पाकिस्तान है, वो इंतहाई जुल्म ज़्यादती की मिसाल है। वो भी हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों की वजह से पेश है। इन्होंने उस फौज के दाखिल के लिए एक सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में इन्होंने उसको नहीं समझा, ना उनको इतदार थे। जब वो जीत चुके थे तो वो मुजीबर रहमान वो शख्स था जो मोहतरमा फातिमा जना के था, वो उससे मोहब्बत करने वाला शख्स था। लेकिन हमारे जो नाआखिर सियासतदान थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कारवाई करा दिया। अक्सर लोग यहाँ जो दोस्त हैं उनको जानते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं अखबारों में लिखता रहा हूँ, कॉलेज में भी था, शायरी शुरू की। आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हूँ एक तरह से। 2002 में जब अमरीकी नफरत का तूफान अफगानिस्तान पर टूट पड़ा और जिस तरह आज इसराइल गजा पर दरेर बम बरसा रहा है, उसी तरह अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर दरेर बमबारी की। पूरे अफगानिस्तान को अफगानों का पाकिस्तान बना दिया। अफगान मुकाबला तो न कर सके, लेकिन हार भी नहीं मानी और जब और हस्ते इस्तेदाद अपनी जानों को कुर्बान कर दे गए। अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है, दोनों तरफ पठान सदियों से आबाद हैं, जिसका असर वजीरिस्तान पर भी पड़ा। फायदा उठाते हुए इसराइल और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस जंग में लपेटना चाहा। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि वो दहशतगर्दों की कुछ पनाही करता है। पाकिस्तान ने अपनी खाल बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की, जिसने कुछ बेगुनाह भी लपेट दिया है। एक तरफ अमेरिका की बमबारी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन, मकानी लोगों का दर्द-ए-अमल फिक्री था। इस सारी सूरत हाल से हिंदुस्तान ने खूब फायदा उठाया और पाकिस्तान फौज को कमजोर करने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। मुखालिफ है, इंसान के सारे मंसूबे पलक झपक में खाक में मिल जाते हैं। कोविड की ताज़ा मिसाल सामने है। वक्त के साथ नए आदात नादिल हो सकते हैं जहाँ दुनिया भर बेबस हो सकती है। इसलिए जंग व जदा, कत्ल व गारत मसाइल का हल नहीं। न दौलत से, न इज्जत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है। खुदा को याद करो। न्यूयॉर्क में रहता हूँ, पाकिस्तान से मैं और इधर मैं आई एम ए रिपब्लिकन and plus I'm New York Pakistani and I believe so like today's day, आज जो 16 दिसंबर का दिन है, इसमें मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को शहीद किया गया और वहाँ पे हमारे इतने काबिल लोग बैठे हैं, उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज क्या थे और जो सारा निज़ाम था वो कैसे उन्होंने उसको अपनी लपेट में लिया। तो अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में अच्छा हो। दहशत गर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे उधर अपने कल भी जो इतने जो पुलिस वाले बंदे उन्होंने मारे हैं, फिर ये किया है, वो भी उधर से जो हो रही है इधर से भी हो रही है। ये वो भी तंग आके कर रहे हैं। जो मेरा बिलीव है कि उनको आपने इस जगह पे ले जा चुके हो कि आपने उनको पीछे आगे दीवार है उसके अंदर रहो, कैसे नहीं वो उनको भी उठाया जा रहा है। उनको चीज कुछ नहीं नजर आ रही। इतना धकेल दिया गया पीछे कि उनको मतलब पीछे मौत है, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। वो क्या बंदा कहते चल यार फिर कुछ करे। तो इसलिए उनको भी थोड़ा जीने का अल्लाह ने दिया तो उनको देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। उन बंदों को भी, हमारे बंदे जो हमारे जो फीसद पाक आर्मी है, उनको चाहिए कि वो इससे ग्रेट आर्मी पाकिस्तान उसके बगैर नहीं चल सकता। आई नो सियासतदानों को छोड़ दो तो वो कुछ दिनों तक वो ही डिक्टेटर बन जाता है, जो भी सियासतदान है। अगर आर्मी उनको सीधी नहीं करे तो शायद वो भी हिटलर बन जाए। एवरीबॉडी विल बिकम हिटलर लाइक इफ द पाक आर्मी डोंट स्टॉप द पॉलिटिशियंस।
So like people को तो knowledge की जरूरत है, उनको information चाहिए और जो ना सही path की जरूरत है. They should read and find the best path for Pakistan. जनाब सदर जलसा कम्बू साहब, दीगर मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के होस्ट मिस्टर कामर मलिक साहब, ये आज की तकरीब जो है हमें ये बताया गया था कि मिर्ज़ा साहब ने हॉस्पिटल जाना 2-4 दिन तक, तो इनकी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के पास है, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं उससे पहले जो हमारे चंद दोस्त हैं मैं कुछ उनसे मिलना चाहता हूँ। ये तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। तो मैं कहता हूँ कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। हमें ये अहद करना है कि हमने पाकिस्तान में सियासी मुआशी तौर पर उसको गमज़न करने के लिए जो हम कर सकते हैं यहाँ बैठकर, हम तो इजहार ख्याल ही कर सकते हैं। जिनके पास ताकत है अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि वो पाकिस्तान को कायदे आज़म और डॉक्टर अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। और इस मौका पर मैं जो बच्चे जो शहीद हुए थे APS के, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह उनके लाकिन को सब्र व जमील अता फरमाए और आइंदा ऐसा इस किस्म का वाक़या ना होने पाए। और दूसरा, मैं ये आज इस फोरम के, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का माशाल्लाह जो चैनल है पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं इनके चैनल की वसातत से, क्योंकि जो मसला कश्मीर है, आप देख लें फ़लस्तीन के बारे में आज भी हमारे पाकिस्तान चले जैसे भी बोलते हैं, लेकिन मसला कश्मीर को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर का जो 370 जो शिप थी उसको ख़त्म किया, अब वहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं। क्यों? कि कायदे आज़म ने, ये मुझसे बात है क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे पता सब लोग ने जाना है, फिर कभी बात करेंगे। कायदे आज़म ने पाकिस्तान को, कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह करार कर दिया था। और वहाँ पे देखें आज भी आज़ाद कश्मीर का अलग हुकूमत है, हालांकि एक डिप्टी कमिश्नर पूरे आज़ाद कश्मीर हुकूमत करता था, लेकिन इसलिए उसका अलग शक्ल रखा कायदे आज़म ने कि ये जो UNO में करारदाद पास हुई थी कि इनको हक़ खुदरादियत दिया जाएगा, इसलिए कश्मीरी को लग रखा कि ताकि जब हक़ खुदरादियत का वक़्त आए तो ये कश्मीरी को वोट कास्ट कर सके और कश्मीर का फैसला हो सके। लेकिन इस वक्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। मेरे दादा 3 दफ़ा मकबूजा कशीर असम्बली के मेंबर रहे इंडिया से। अब्दुल अजीज शाह नाम था मेरे दादा का। मेरे वालिद साहब के नाम पे रोड है कश्मीर में। मैं खुद गुजरांवाला कैंट कश्मीर कॉलोनी का 2 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ। कश्मीरी कुर्बानियाँ दे चुके, लेकिन उनकी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया गया है। आप मेरा नाम मिर्ज़ा शेर अहमद बेग, गुजरात पाकिस्तान में मेरा तलक है। देहात का मैं रहने वाला, जमींदार आदमी हूँ। फौजी खानदान में मेरा तलक है। बेसिकली मैं फौजी हूँ। 81 इतने आया, आन के अपनी लिविंग करने वास्ते टैक्सी चलाई और अच्छी लिविंग की। और जी बेसिक गल साडे मुल्क की वो छोटी गल है, नो जस्टिस नो पीस। जिथे इंसाफ नहीं है उत्थे हुकूमत कायम नहीं रह। मैं टैक्सी चलाता सी, मैं एक सवारी चुकी। जिस वे असी ब्रुकलैंड कोर्ट से को लंघे तो मैनू कहता तू कौन है? मैं आख्या मैं पाकिस्तानी हाँ, मुसलमान। आंदा उत्ते जो कोर्ट के उत्ते इंग्लिश लिखे पढ़ वाला। मैं आख्या तू ही पढ़ के दस। आंदा वो लिखे नो जस्टिस नो पीस है। पता ही कि कौल है? मैं आख्या तू दस मैनू, क्योंकि तू मैनू पुछना पाया, मैं शायद अंग्रेजी तेन एक्सप्लेन ना कर सका। आंदा ये तुहाडे हजरत अली का कौल है, ये मुताबिक तुसीं जिंदगी गुजारी नहीं। फिर उन्हें कहा कि तुहाडा जिहड़ा नबी कुरान पाक लैके आए उहदे ते तुसीं अमल ते करदे कोई नहीं होगे। लेकिन उन्होंने ले आउट हजरत उमर ने किया और उस तो बाद अगे अगर कोई जरूरत पवे तो चेंजिंग की जरूरत नहीं, इतना अच्छा ले आउट हो गया है। आया असीं उस मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? कोई नहीं गुजार रहे। असीं इब्नल वक्त लोग हाँ। पाकिस्तान बनता गया तो उन्होंने तरोड़ने दी साजिशां उदों ही शुरू हो गई ने। तुहाडी ब्यूरोक्रेसी, तुहाडी स्टैबलिशमेंट, तुहाडी आर्मी, तुहाडे सियासत A to Z हर आदमी उहदे च मुलवस है। ईवन असीं, मैं बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर होकर मैं भी मुलवस हाँ। किसी बंदे मुल्क वास्ते अच्छा नहीं सोचा, कोई चौकीदार है या कोई सदर है। A to Z हर बंदे ने बेईमानी उस मुल्क ना की। वो मुल्क कैम किस तरह है वो अल्लाह ही बेहतर जानता। अज भी उन्होंने हर बंदा खा रहा।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 टुकड़े हो चुके हैं। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, वेरी गुड। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 4 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮਸੂਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜੂਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼, ਮੇਰੀ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, A to Z ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, लो जी एडिया ने मैंने उधर जाके ना तो मैंने इतनी नाते पढ़ी, मैंने इतनी नाते पढ़ी, ऐसा ही ना जी। मैं गौसिया बनाने वाला मैं हाँ, पता तुहानू डंडे सोटे खा के मेरे नौ निकल गए सी। कोई नहीं पुछदा अजकल, वो कितने नहीं शाह रही। कोई बंदा ना किसी मस्जिद च बोलिया, ना किसी कोई तंजीम च बोलिया, कोई बंदा नहीं बोलिया। कौन बोले ने? स्पैने बोले ने, काले बोले ने। हर बंदा 9-9 घंटे उन्हें शिपां असले आया डक छड़िया। उन्हें आख्या असा उत्थे तुसीं जेनोसाइड कर रहे हो, असा नहीं जान देना। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ वेरी गुड ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾदेश ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਗਲਾदेश ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਫੌਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। 81 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋ ਜਸਟਿਸ ਨੋ ਪੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਜਸਟਿਸ ਨੋ ਪੀਸ। ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੇ ਆਊਟ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਬਨਲ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤ, A to Z ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਦਰ ਹੈ। A to Z ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 टुकड़े हो चुके हैं। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, वेरी गुड। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 4 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮਜ਼ੂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜੂਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼, ਮੇਰੀ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾ।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ A to Z ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਮੌਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, लो जी एडिया ने मैंने उधर जाके ना तो मैंने इतनी नाते पढ़ी, मैंने इतनी नाते पढ़ी, ऐसा ही ना जी मैं गौसिया बनाने मैं हाँ पता तुहानू डंडे सोटे खा के मेरे नौ निकल गए सी। कोई नहीं पुछदा अजकल वो कितने नहीं शाह रही। कोई बंदा ना किसी मस्जिद च बोलिया, ना किसी कोई तंजीम च बोलिया, कोई बंदा नहीं बोलिया। कौन बोले ने? स्पैने बोले ने, काले बोले ने। हर बंदा 9-9 घंटे उन्हें शिपां असले आया डक छड़िया। उन्हें आख्या असा उत्थे तुसीं जेनोसाइड कर रहे हो, असा नहीं जान देना। ए लोग ने भाजी मैं आई लाइक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾदेश ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਮੈਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਲਾदेश ਬਣਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। और सानू अपने आप को चेंज करना चाहिए। सानिया मशरकी पाकिस्तान की बात हुई है, सानिया APS की बात हुई है, अब आप सानिया इंतखाबात की बात कर लेंगे, सानिया कश्मीर की बात कर लेंगे, सानिया फ़लस्तीन की बात कर लेंगे। खुशी के मौके तो बहुत ही कम आए हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है जहाँ तक बाकी सानियात में ही हमारी ज़िंदगियाँ झटकों में ही गुजरी हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ वो खुशी का मौका बड़ा आया था, 98 में हमने एटम बम बना के उसको डिक्लेयर किया था, तो मुझे उसके कोई सम्राट, कोई 1% कोई चीज़ किसी पे असर हुआ हो। आज भी भारत आके अपने एपी मिसाइल फेंक जाता है तो अपने पायलट भी भेज देता है, और हम चाय पिला के हाथ बांध के कुछ तो हम पता नहीं क्या करके उनको रातों रात भी भेज देते हैं उसके साथी को, और उसको जो है वो फिर हम ज़रा थोड़ा सा लिपापोती करके मगर भेज देते हैं हाथ बांध के। तो 6 जो अभी ये टर्म की बात कर रहे थे, जिस दौरान अभी हमारे इसी दौर में ही 6 वज़ीर-ए-आज़म बदले हैं, जबकि दूसरा आर्मी चीफ जो है वो तशरीफ़ फरमाए हैं। 2 आर्मी चीफ जिनका 3 साल से ऊपर जा नहीं सकते, मगर वज़ीर-ए-आज़म जिसने 5 साल करने होते हैं वो 6 गुजर चुके हैं। तो फिर वही बात कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। पहले दिन ही टेढ़ी रख दी गई, डिक्टेटरशिप ने कब्जा कर लिया, एप्रिसिएशन उसे दबा के मिली बैनुल अक़वामी तौर पे। जिन्होंने हमें काले गुलाम जिन्होंने आगे रख दिए थे ब्राउन, उन्होंने कहा नहीं आप ही इनको कंट्रोल करो, हमें मरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमारा हिस्सा हमें पहुँचता रहेगा, कंट्रोल हमारी रहेगा, गुलाम यही कौम रहेगी मगर सुपरवाइज़र तुम होइए। ठीक है, ये सूरत हाल चल रही है। अब फिर एक एक करके चीज़ें करेंगे। बच्चों का भी अफसोस है, उन्होंने भेजे थे पढ़ने के लिए उन्हीं सड़कों पे जिनकी जिम्मेदारी लोगों की थी, उन्हीं सड़कों पे दहशतगर्द आए, उन्हीं से होते हुए असला ले के अंदर गए, बच्चे जो हैं मार दिए गए। हिफाजत किसकी जिम्मेदारी? ऐसे ही सानिया मशरकी पाकिस्तान, ये सारे मामलात को ख़राब किसने किया? जिसने कहा है कॉलेज है ना, इनको रहने दो, दफ़ा करो इनको, तो दफ़ा हो गए। आज मैंने 1-2 बार इंटरव्यू किए हैं पिछले इसी दिन, तो वो बड़े ही खुश हैं, जैसे ईद मनाते हैं वो इस तरह है कि हमारी जान छूटी। और वो बड़ी अमेरिका में भी तरक्की कर रहे हैं। मैं यहाँ केनाल स्ट्रीट पे पिछले दिनों को चीज़ लेने गया, गिफ्ट शॉप जो है वो सबसे प्रॉफिटेबल काम है यहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो 48 दुकानें मैंने जाके ना देखी, मैं हैरान रह गया। मुझे वो प्लास्टिक की चीज़ तो ना मिली एक्सेसरी रखने के लिए। मैं देखता जाऊँ बंगाली, मैंने एक को पूछ ही लिया, मैंने कहा कितने पाकिस्तानी और इंडियन और पाकिस्तानी कितने? उसने कहा 1 या 2। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मेरा तल्लक एजुकेशन से है, और पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, बुरनाई में यही काम किया, और गुज़श्ता 20 साल से पंजाबी में अंग्रेज़ी यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ माशाअल्लाह। बाकी मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे, और APS के बच्चों के शहदा शहादत को अल्लाह भी बूलबंदी। यही बहुत बड़ी बात है कि शहीद है, बुलंद है, अल्लाह ताला
माफ कराए और हमारी दुआएं जैसे कि आप सब यहाँ पे गैदर हुए हो 16 दिसंबर के मसाकर को डिस्कस करने के लिए, तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग कि जिन माओं ने अपने बच्चे सुबह स्कूल भेजे कि वो वापस आएंगे और कुछ ख्वाब सजाए होंगे माओं ने कि मेरा बच्चा या बच्ची बड़ा होके ये बनेगा। जैसे मेरे वालिदैन का ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया। तो हर माँ का ख्वाब होता है, जैसे मेरा बेटा है आपके सामने, मेरा भी ख्वाब है कि बड़ा होकर किसको कुछ बनाऊंगी। तो माँ ने अपने कुछ ख्वाबों को स्कूल भेजा और वापसी पे उसको क्या खबर मिली कि उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। और उन जालिमों को इतना, वो सिर्फ 7 लोग थे और उन जालिमों को इतना भी नहीं आया कि हमारी भी माएँ हैं, हमें भी हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, सबका कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उनको ये जरा भी ख्याल नहीं आया कि इनकी माओं पे क्या गुजरेगी। बेसिकली दैट वाज अ जीनोसाइड, क्योंकि वो मिलिट्री का स्कूल था, APS वाज, वहाँ पे जितने भी बच्चे जा रहे थे वो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे। क्योंकि मेरे वालिद का भी ताल्लुक आर्मी से था, तो मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ कि APS में जितने भी बच्चे जाते हैं वो सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, वहाँ पे नॉर्मल नहीं होते। उन्होंने टारगेट सिर्फ और सिर्फ आर्मी की फैमिलीज को किया। बेसिकली वो उनको जो ज़रबे अज़ब था उसका रिवेंज लेने के लिए उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू अटैक तालिबान इन वजीरिस्तान, नाउ वी विल अटैक योर किड्स। उनको बच्चों से नहीं था, वो उनको पेन देना चाह रहे थे आर्मी को और आर्मी की फैमिलीज को, लेकिन दर्द कहीं हुआ, तकलीफ कहीं थी। लेकिन जितना भी हम बातें कर लें या कुछ भी कह लें, माँ बाप का, उनका जो माओं का दुख है वो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उसको हम मरहम नहीं रख सकते, क्योंकि वो माएँ जो अभी भी दुखती हैं, अभी भी अगर उनको वो बात टाइम याद आ जाए वो नहीं भूल सकती। क्योंकि जिस बच्चे को सिर्फ आपने 9 महीने 10 महीने पेट में रखना है, उसके बाद बहुत कुछ करके आप उसको उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि वो स्कूल जाए। नहीं, ये तभी आप इस चीज़ को वो कर सकते हो जब आप माँ बनते हो। माँ के दर्द को आप तभी फील कर सकते हो जब आप एक माँ बनते हो या बाप बनते हो, अदरवाइज आप कभी भी फील नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक एक दिन, एक एक रात, मेरा बच्चा छोटा है, वो कैसे रात को जागता है, सोता है, दिन में पूरा 24 घंटे में वो क्या क्या करता है वो मुझे पता है, और कितनी मुश्किल से मैं उसको पाल रही हूँ वो मुझे पता है। सिर्फ ये स्कूल तक जाना वो नहीं, बच्चे को शुरू से इतनी इन्वेस्टमेंट करना, 16 साल के 15 साल के बच्चे, 14 साल के 12 साल के छोटे बच्चे, वहाँ तक माँ की कितनी मेहनत लगी होगी। तो बड़े बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये माँ बाप को पता होता है कि कितना वो उनके लिए किया है, और दुख उसी को पता होता है। बिल्कुल। तो ये बातें करने से मैं नहीं किसी का दुख कम कर सकती, ना किसी की माँ, लेकिन अफसोस होता है, अभी भी दिल को तकलीफ होती है जब वो डे आता है, तो हम सोचते हैं उन माँ की तकलीफें सोच के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह उन माओं को सब्र दे और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें और इस तरह के लोगों को अपने मुल्क से किक आउट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनिला रशीद है, मैं स्मॉल बिजनेस मिनारिटी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही 4 पिलर की मैं ख़वातीन विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं सबसे पहले मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके लिए मैं ढेरों दुआएं करती हूँ कि इन्होंने ख़वातीन की हमेशा रिस्पेक्ट की है। मैंने इनके साथ काम किया है, मुझे पता है कि ये ख़वातीन के बारे में बहुत इज्जत और एहतराम रखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म ख़वातीन के लिए मुहैया किया है, आप जो बना रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके लिए और दुआ गो। इसी का करूँगी क्योंकि सब भाइयों ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है आज के इस सेशन में, और इंशाल्लाह ये आइंदा भी होते रहेगा। मैं सिर्फ चंद अशार ही कहूँगी। सानिया पेशावर के बारे में बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, ऐसे लगता है कि वो वाक़या आज ही हुआ है और दिल खून के आंसू होता है। उन बच्चों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिसके बच्चों से डरता है, मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है और बच्चों से लड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ए वंडरफुल गैदरिंग। आप लोगों ने सारी बातें की, बड़े प्यार से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेरी गुड एफर्ट। कामरान साहब, मैंने इनका पहले तारुफ कराया था, कामरान साहब बोले थोड़ा सा। मेरा नाम कामरान मलिक है और मैं रेलवे चीफ हूँ दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और बेसिकली मैं होल सेल का बिजनेस कर रहा हूँ रोड का।
22 कैरेट एंड 24 कैरेट। और मैं इस पे दिसंबर 16 को जो है पेन हुई है बच्चों के बारे में, तो उस पर कहता हूँ कि ये काफ़ी जुल्म हो गया है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला उनकी जन्नत और उनके माँ बाप को सब्र और सब्र करने की हिम्मत अता करता हूँ। बस, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फिक्र रखने वाले लोग, दर्द रखने वाले लोग, वो इकट्ठे करने बहुत मुश्किल होता है, और जो बात करने वाले लोग हैं उनको ट्रोल करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बात करते हैं सैयद शहबाज साहब ने, जिनका नाम लेते हुए मैं आपका सैयद ज़ात है, और जब बात की आपकी इंसाफ की तो इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह ट्रोल किया गया और किस तरह कार्टून बनाए गए। मेरे 400 से ऊपर मेरे पुतले बनाए गए यहाँ इसी कम्युनिटी के लोग। ये वो कौन लोग थे? इन्होंने यहाँ जगह जगह पे नेटवर्क बना रखे हैं और तकरीब इख्तिताम पर कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियत मुश्ताक अहमद कम्बो, उनको उनकी कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी को इकट्ठा रखने और बैनुल मज़ाहब उसके हवाले से उनकी जो खिदमात के एवज़ जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट फोरम, जिसमें सैयद शहबाज, पाक वतन टीवी, फ़ारूक मिर्ज़ा सदर, फोर्थ पिलर टीवी यूएसए और विजिलेंट मीडिया वॉच डॉग, मशरक और डेली मिरर से फारूक ख्वाजा, और प्रोग्राम के होस्ट कमरान मलिक जो ब्यूरो चीफ हैं डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मुश्ताक अहमद कम्बो को उनकी खिदमात के एवज़ सनद पेश की, जिसको शुरका ने सराहा।